सिर्फ प्ले कर रहा है। वेलकम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। Welcome to the first session of learning Urdu, and I'm delighted to be taking this session for you. This particular session is planned to comprise, or this particular program is planned to comprise 5 to 6 sessions, just so many. Urdu is such an easy language to learn that if you do 5-6 sessions with me, and by spending not more than 20 minutes all put together, you will be able to read and write Urdu effortlessly. बस इसमें ये assumption किया हुआ है कि आप हिंदी जानते हैं, क्योंकि एक कुछ बेसिस चाहिए होता है, कोई किसी लैंग्वेज का बेसिस जरूरी होता है. So I will use a little bit of Hindi, a little bit of English for us to learn Urdu. This is how Urdu is written. Re, alif, re, dal or waw. Okay. देखिए, उर्दू जो भाषा है, maybe we can spend a minute or two just understanding the background, the social context. उर्दू करके कोई अलग सी भाषा नहीं थी. उर्दू जो है, it is from Persian, which was a prevailing language under the Mughal era. Persian traveled to India, even towards Deccan, along with Arabic and Turkish, and there are a whole lot of Indian languages which also came together to form Urdu. Okay, जैसे है आपका मैथिली, अवधी, ये सब मिलकर, और हम लोगों ने क्या किया कि उर्दू का स्क्रिप्ट जो है, we borrowed that script from the Arabic and Persian script. That is how it is written. So it is a very nice, beautiful language. All of us know, most of us from South Asia are deeply in love with this language, especially in India. And one of the things I wanted to do was to make it easy for Urdu to be a language that all of you write. So let's start with the session. I'm going to take about next 10 minutes to teach you a few letters, and we'll start writing Urdu right after that. Okay, so let me start with the letter Alif. Okay, see, this is how Alif is written. Very simple. This makes the same sound as the soft or the in Hindi. Okay. Now let me take a family of letters that all look together, look similar. कटोरी बना लीजिए आप, 5 कटोरियां बना लीजिए, 3, 4, 5. ठीक है. अगर आप ये 5 जान जाएंगे तो आज आप कम से कम 50-100 वर्ड्स लिख सकते हैं. सबसे पहला है, इस कटोरी के नीचे एक नुक्ता, इसे नुक्ता कहते हैं, पॉइंट. नुक्ता ची है गमे दिल, नुक्ता मीन्स इज अ पॉइंट, डॉट. ओके, इसे कहते हैं हम, ये ब के बराबर है. ब, हिंदी वाला बा या इंग्लिश वाला बी. ठीक है. अगर इस कटोरी के नीचे आप 3 डॉट लगाएंगे, 3 नुक्ते लगाएंगे,
तो ये हो जाता है प के बराबर या पी। इसे कहा जाता है पे। ओके, अंदर दो नुक्ते लगा दीजिए तो ये हो जाता है ते। ता के बराबर सॉफ्ट वाला टी। ओके, और अगर आप नीचे दो नुक्ते लगा देंगे तो ये हो जाएगा य के बराबर, य या ए या वाई। ओके, और आप कटोरी के अंदर बी ऐसा लिख देंगे तो ये हो जाता है ट के बराबर, ट। ओके, बे, पे 3 डॉट्स, पे 2 डॉट्स, ये या 2 dots underneath, and then t is 1 dot, sorry, 1 b on top of or inside the katori. ओके, और एक और वोवल कर लेते हैं। एक हमने वोवल यहाँ किया हुआ है इसका अलिफ, एक और हम कर लेते हैं जिसे कहते हैं वाव। वाव, वाव जो है ये व के बराबर भी है, ऊ के बराबर भी है, और ऊ की मात्रा लगाने में भी काम आता है। ओके, ऊ की मात्रा लगानी हो आपको तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाए तो ये इट मेक्स अ साउंड इक्विवेलेंट टू यू और साउंड इक्विवेलेंट टू डबल ओ। ओके, लाइक दिस, डबल ओ और यू। ठीक है, so now that you've seen this, let's go and see what words we can write. We'll go to the next page. Okay, let's start with the next page. Now that you have started writing, let me give you a dictation. Okay, if you are ready with your thing, let me ask you to write equivalent of Baba. Ba. Okay. बा, बा, बाबा लिखिएगा हिंदी में, उर्दू में। ओके, और the other or father. Have you been able to do it? It's very simple. कटोरी के नीचे एक डॉट, अलिफ, कटोरी के नीचे एक डॉट, अलिफ, बा बा। Okay, let me take another word. Let me say tata. Okay, ta ta. How do you write that? ताता को कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, कटोरी के अंदर 2 डॉट, ता अलिफ, ता अलिफ। Simple. Right now, I'm not getting into cursive and the joined words. We will do that in session 4 or session 5. Okay. Now, I'm going to give you a few words, and then I'll give you half a minute, and then you could write all of those. लिखिए ये, मैं हिंदी में लिखता जाता हूँ, आप इसका देखिए कर सकते हैं क्या? आप, पापा, okay, then टाटा, then आटा। ये सारे लेटर्स हम कर चुके हैं, तो आपको करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। पता, then
ओके, देन तापमान, तापमान हमने नहीं किया है, नून नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। तो ये सब वर्ड्स एक बार कर लेते हैं। ओके, ताता, ताता आपने लिख दिया है। हाउ डू यू डू, पापा, हाउ डू यू डू, आप, बहुत सिंपल। अलिफ, आप के लिए ऐसे ऊपर डालते हैं, आप, आप। ताता, ते, अलिफ, ते, अलिफ। ओके, टाटा कैसे लिखते हैं, टाटा, टे, अलिफ, टे, अलिफ। आटा, बहुत सिंपल, आ, ट, अलिफ, सिंपल। पता, बहुत सिंपल है, पे लिखा आपने, त लिखा आपने, और अलिफ, दैट्स ऑल। ताप, ताप, ते, अलिफ, पे। तापमान फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने मीम और नून, म और नून नहीं किया है, तो इसे फिलहाल छोड़ देते हैं। ओके, क्योंकि मैं आपको मीम और नून भी पढ़ा देता हूं पहले, फिर आप लिख सकते हैं। देखिए, म जो है, देयर आर टू कॉन्सोनेंट्स, म और मीम, इसे मीम कहते हैं। मीम को लिखा जाता है ऐसा बहुत खूबसूरत सा, एक लिखने में बहुत मजा आता है। और दूसरा है नून, एन न के बराबर है, नून, नून कहते हैं इसे, और लिखा इस तरह जाता है, लिखा इस तरह जाता है, नून, सिंपल। यू, यू के अंदर डॉट। और कभी आपको आधा नून लिखना पड़े, जैसे आसमां, आसमां लिखना पड़े, तो सिर्फ यू लगा के छोड़ देते हैं, नुक्ता नहीं आता है। ओके, नाउ लेट अस राइट अ कपल ऑफ वर्ड्स यूजिंग म, नून। मनु, मान लीजिए आप मनु लिख रहे हैं, मनु लिखना चाहते हैं, बहुत सिंपल है, मीम, नून, वाव, म, न, ऊ। नमो लिखें, नमो, नून, मीम, न, म, ओ की मात्रा, वाव की मात्रा, नमो। ठीक है, I think that is more than enough for now. We have done a few letters, consonants, we've done a couple of vowels, and you can write at least 25 words. मैं चाहता हूँ आप लिखें और मेरे email ID पे भेजें। मेरा email ID मैं यहाँ लिख देता हूँ। Let me see how many of you can do it. satya@careerlauncher.com. Thank you very much for being part of this session. Let me see if you enjoy. If you're able to enjoy this, we'll continue the Urdu sessions as we go along. Thank you very much.